Ninth class, today we are going to start with a new topic that is biogeochemical cycles, right? So before starting with the topic, let's just try to understand the name of the topic, right? कि name में से ही शायद थोड़ा सा कुछ हमें समझ आ जाए. Then it would be easy to understand the definition, and then it would be easy to understand the other cycles as well, right? So let's just focus on the name first. देखो क्या लिखा है. Bio geo and chemical, right? These are the three words. Bio, अगर आप bio को define करने की कोशिश करो, so how do you define bio? We just say that living organisms, right? Because bio word आया कहाँ से? From biology. And how do you define biology? Study of living organisms and their environment, right? तो bio में we are constituting biotic matter, okay? आफ्टर दैट जियो, ये जो वर्ड लिया गया जियोग्राफी से लिया गया है, आसपास के मतलब जो एनवायरनमेंट हो गई, लोकेशंस हो गई. So we are basically referring to abiotic environment over here, and the rest is chemical. Okay, so there are certain chemicals that would be processing through the biotic factors and abiotic factors. And the last word is cycles. Cycle may see what happens in cycling is that certain process is continuously being repeated, right? That there are certain stages which occur and then there is a repetition of that, right? For example, जब एक cycle, अगर मैं एक normal bicycle की बात करूँ, so what happens in that bicycle? You're continuously paddling, right? And then the wheel is rotating. And in general terms, whenever you refer to a cycle, what do you do is that a process is continuously being repeating, right? So when we'll be talking about biogeochemical cycles, we would also be referring to same. What? That a process is continuously being repeated. That's why we would be calling it as cycle. But the name is biogeochemical cycle. So what is happening is a chemical or a substance would continuously be rotated, a chemical or substance would continuously be processed through biotic and abiotic factors, right? That's the name biogeochemical cycles. मतलब a chemical or a substance would be continuously repeated through biotic and abiotic factors. Now I believe it's clear to you through the name only. अगर यहाँ तक थोड़ा सा समझ आ गया है, so it would be easy to understand the topics and to understand the definition, right? So let's start with the definition that's been written over here. That a biochemical cycle refers to the natural cycle of the earth, that it happens naturally, and in this cycle what happens is a chemical substance or matter moves through the biotic and abiotic components of the earth. As we just discussed, the same is the definition written over here, right? अब देखो हमें as I always tell you कि जब भी कभी कुछ समझ नहीं आए, कुछ डिफिकल्ट लगे, किसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, तो जस्ट ट्राई टू एनालाइज द नेम, है ना? अगर नेम को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करोगे उसमें क्या लिखा है, तो बहुत बार ऐसा होता है वो अपने आप ही समझ आ जाता है. जैसे अब ये कितना डिफिकल्ट सा नाम लग रहा था, है ना? देन वी ट्राई टू स्प्लिट इट अप, समझने की कोशिश की और देखो अपने आप ही डेफिनेशन बनकर आ गई. हमने कहाँ कुछ किया, राइट? एंड द डेफिनेशन इज सेम दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. वो इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ थोड़ा सा जो टर्म्स थी उसको समझने की कोशिश कर ली, राइट? तो साइकिल हमें पता था, केमिकल हमें लगा कि अच्छा बायोजियो में समझ आ रहा है तो केमिकल से रिलेशन कुछ इस तरीके से ही होगा. तो नाउ आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू. तो नाउ बिकॉज वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन, तो अब क्या होगा, ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है और ए बायोटिक कंपोनेंट्स, हमने ये तो कह दिया कि इनमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस या कोई केमिकल प्रोसेस होता रहेगा. बट कैसे प्रोसेस होगा, कुछ तरीका भी तो होना चाहिए ना. वो तरीका ये है कि जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दे ऑलवेज इंटरैक्ट विद ए बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट? से फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस. हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज इंटरैक्ट विद आवर एनवायरनमेंट, है ना? हमेशा अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं.
हमें वैसे भी एयर चाहिए, हमें सॉइल से सामान चाहिए, राइट में हम क्योंकि वहाँ से हमें ट्रीज सॉइल में ग्रो होते हैं, तो हमें ट्रीज से बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं, हमें मिनरल्स चाहिए, हमें लैंड से सामान चाहिए, हमें वाटर चाहिए. So the biotic factors always interact with abiotic factors. And because biotic factors keep interacting with abiotic factors, they form a stable system in the biosphere, है ना? आपको शायद मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार पढ़ाया भी है कि दैट इफ वी नीड टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द बायोस्फीयर, अगर हमें बायोस्फीयर में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, तो हमें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की ज़रूरत है. और साथ ही साथ हमें किसी को डैमेज नहीं करना, राइट? अगर किसी को नुकसान होगा तो हो सकता है हमारे बायोस्फीयर की स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाए, वो डैमेज हो जाए. नाउ एट दिस पॉइंट आई बिलीव आपको बायोस्फीयर क्लियर है. In the initiation of the chapter only, we discussed about the biosphere, right? So now let's just discuss the cycles that we are going to study under this topic. So we are basically going to study four main biogeochemical cycles. That is, first is water cycle, next is nitrogen cycle, carbon cycle, and oxygen cycle, right? So we are going to study basically these four cycles. Now I believe that would be clear to you that now because the definition of biogeochemical cycles is clear to you. So we are actually going to study that how these four substances, which for water, nitrogen, carbon, and oxygen, are being circulated through various components of the biosphere. है ना? So we are going to study that. Okay. So let's start with very first topic, that is the water cycle. Now, because we are now clear with the definition of biogeochemical cycles, so definition of water cycle becomes automatically evident, right? तो इसका मतलब क्या होगा water cycle का? Continuous movement of water from the sky to the ground and then back again, right? कि water की movement है होती कैसे? From ground to sky and then back again, या फिर from sky to ground and then back again. कि लगातार वाटर की मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट बायोस्फीयर के कंपोनेंट से होती रहेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे दैट दिस इज वाटर साइकिल, राइट? When we were talking about the formation of clouds in this chapter, so inevitably we have already discussed the water cycle. So these steps would seem repeating to you. These steps might seem obvious to you, but let's discuss them again. Okay. The very first step is evaporation. Evaporation में क्या होता है? अर्थ से वाटर इवेपोरेट होता है. जब इवेपोरेट होता है तो एक्चुअली किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, है ना? व्हेन द सन शाइन्स ब्राइट, तो क्या होता है? जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है. आपने हमेशा से पढ़ा है कि जब वाटर इवेपोरेट होता है तो इट राइजेस अप, है ना? वाटर इवेपोरेट होकर जाता कहाँ है? ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज इवेपोरेशन, जिसमें क्या होगा? अर्थ में से वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, राइट? आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होगा? वाटर ऊपर जब चला जाएगा, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, जैसे हमने क्लाउड्स वाली फॉर्मेशन में स्टडी किया था, हमने ये स्टडी किया था कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ की जो एयर होती है वो भी वार्म अप हो जाती है. तो वार्म एयर क्या होती है? ऊपर की तरफ उठती है, राइट? वार्म एयर राइजेज अप, एंड बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ दैट वार्म एयर, जो हमारे वेपर्स होते हैं वो भी ऊपर चले जाते हैं, है ना? अब क्या हो रहा है? वाटर वेपर्स ऊपर चले गए हैं, बट एज सून एज द राइज अप, ऊपर क्या होता है? ऊपर टेम्परेचर कम होता है, राइट? टेम्परेचर कम है तो वाटर वेपर्स भी ऊपर गए हैं. ऊपर जब टेम्परेचर उनको कम मिलता है, सो अ नेक्स्ट प्रोसेस occurs that is called as condensation, right? So in condensation what happens is the water होता है, जो वाटर के वेपर्स हैं वो अब कूल डाउन होने लगते हैं, राइट? अभी तक इवेपोरेट होकर ऊपर गए थे, अब जैसे ही वो कूल डाउन होने लगते हैं, सो आफ्टर कूलिंग डाउन दे फॉर्म द क्लाउड्स अप इन द एटमॉस्फेयर, राइट? ऊपर जाकर वो अब क्या बना लेते हैं? क्लाउड्स बना लेते हैं. उसके बाद जब वो ड्रॉप्स बहुत हैवी हो जाती हैं, देन दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, राइट? रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाती हैं. अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा तो इट कुड बी स्नोफॉल, राइट? So that's how water cycle operates. कि
एक बार evaporate होगा, then they would cool down over there, and then they would fall back in the form of rainfall or snowfall, right? इसके बाद जो फिर वाटर ग्राउंड पे वापस आ जाता है, जो वाटर अर्थ पे फॉल कर जाता है, वो अलग अलग पाथवे से ट्रैवल करता है। मतलब हो सकता है ग्राउंड वाटर में चला जाए, लेक्स में चला जाए, पॉन्ड्स में चला जाए, वेल्स में चला जाए, बट somehow it again finally enters into the rivers and then back into the sea, right? again फिर से वही प्रोसेस चलने लगेगी, evaporation होगा, clouds की formation होगी, and then through rain again the same process would be repeated, right? कुछ वाटर यूटिलाइज भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, एनिमल्स यूटिलाइज कर लेते हैं, या फिर ह्यूमन बींग्स जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो यूटिलाइज कर लेते हैं ना। वह कॉन्टिन्यूसली टेकिंग इन वाटर ले रहे हैं ना या नहीं? ऑब्वियसली ले रहे हैं, फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, राइट, washing, or for various kind of for cooking, right? So there are various kind of activities in which water is continuously being used. Plants are also taking up water, animals are also taking up water. So some water is being utilized and some water is continuously being circulated. Okay, but the main thing is कि जो water का journey है, जो water की journey है, that always continues in the form of water cycle that we have just discussed, right? So this is basically a very easy representation of water cycle, right? In which there are four basic steps representing the water cycle. Start with the very first step, that is evaporation. Evaporation में क्या होता है? The water from the water bodies evaporates due to very high temperature of sun, है ना? सन के हाई टेम्परेचर की वजह से जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर ऊपर जाके क्लाउड्स बना लेता है, राइट? क्यों? क्योंकि जब ये वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है और वो कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स बना लेते हैं। फिर जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो बारिश होती है, दैट वी कॉल एज प्रेसिपिटेशन, राइट? फिर प्रेसिपिटेशन से वाटर अगेन कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, फिर कलेक्ट हो फिर दोबारा से इवेपोरेट हो जाता है, राइट? So this is a sorry. So this is a very simple illustration of the water cycle. After that, we are now moving to the next biochemical cycle, that is the carbon cycle. Again, the obvious definition, क्योंकि अब biogeochemical cycle की definition पता ही है, तो definition of carbon cycle obviously becomes very easy, right? तो carbon cycle में होगा क्या? A process in which carbon is exchanged among the biotic and abiotic components of the earth, right? तो अब जिसमें कार्बन का एक्सचेंज होगा उसको हम क्या बोल देंगे? कार्बन साइकिल बोल देंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द कार्बन साइकिल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कार्बन अर्थ पे प्रेजेंट किस किस फॉर्म में है, क्योंकि हमें वाटर का तो पता था, राइट, कि वाटर यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। बट नाउ इफ आई आस्क यू क्वेश्चन दैट कैन यू टेल मी दैट वेयर इज कार्बन प्रेजेंट, सो यू वुड गो इनटू अ थिंकिंग मोड, लाइक हमने ऐसा तो हम कभी नहीं कहते कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, हमें कार्बन चाहिए, राइट? सो वी नेवर डू लाइक दैट, है ना? हम कभी ऐसा नहीं कहते कि हम कभी शॉप पे जाके कहते कि मुझे कार्बन दे दो। एवर डन दैट? नो। या फिर हम कभी ऐसा नहीं कहते कि मुझे कार्बन की कमी हो रही है, मुझे कार्बन की भूख लगी है, वहाँ कार्बन मिल रहा है। सो लेट्स जस्ट ट्राई, बट वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बन साइकिल, राइट? सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कार्बन प्रेजेंट कहाँ कहाँ है और किस फॉर्म में है, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्बन साइकिल, राइट? तो अब अगर हम बात करें कि कार्बन अर्थ में प्रेजेंट किस किस फॉर्म में है, so there are certain forms in which carbon is present. The very first being the carbon dioxide, right? Always heard of carbon dioxide? Obviously, yes. You're continuously exhaling it, है ना? ऑक्सीजन अंदर लेते हो, so you're continuously exhaling the carbon dioxide. So in that form, carbon is present, right? After that, there are various kind of minerals present. तो उन मिनरल्स में कार्बन किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स, ओके, HCO3 और CO3, ओके। आफ्टर दैट हमारी बॉडी में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं? प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। अब इनका तो नाम आपने सुना ही है हमेशा से, राइट? वाइटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो इन ऑल दीज फॉर्म्स कार्बन इज प्रेजेंट, ओके।
After that, the skeleton, it could be internal skeleton, which is called as endoskeleton, like in the case of human beings, like in the case of us, or it could be external skeleton. External skeleton is called as exoskeleton. Exoskeleton is actually present in some insects, okay? In some insects, exoskeleton is made up of different substances, but carbon is also a major constituent of that. So in that case, we call it as exoskeleton. So sometimes internal skeleton and external skeleton is made up of carbon salts. तो यहाँ भी कुछ फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है, राइट? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे कार्बन की लगातार सर्कुलेशन हो रही है, दैट इज फोटोसिंथेसिस. कैसे? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं, प्लांट्स आर टेकिंग अप दैट, राइट? प्लांट्स अगर उसको ले रहे हैं, सो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. When they perform photosynthesis, what they actually do, they are making up food, right? वो तो खाना बना रहे हैं. खाना usually बनता है in the form of glucose, and the structural formula for glucose is C6H12O6. तो क्या आ गए? 6 कार्बन आ गए दोबारा से. So the carbon is again being circulated, right? They are taking up carbon dioxide and they are making up glucose. Okay. So that's how these are certain forms in which carbon is present on Earth. Okay. But the question is that how is it released back to the atmosphere? Because we have just studied that how it is present. So there should be some the ways, there should be some methods to which it is always released back into the atmosphere. Yes, obviously there are certain ways, but two of the major ways are, first is respiration. Okay. रेस्पिरेशन तो बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही एविडेंट है. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट कि हम क्या करते हैं, जो हम ग्लूकोज, जो भी हमारा इनटेक होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? जब उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना? एंड व्हेनेवर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में जा रही है ना? हमने एटमॉस्फेयर से क्या लिया? फूड लिया, और वो क्या था? कार्बन था, राइट? नाउ द कार्बन इज अगेन बीइंग रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज कंबशन. कंबशन तो बहुत जगह होती है, बहुत लार्ज स्केल पे होती है. एंड कंबशन है क्या? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, है ना? अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए हम फ्यूल को बर्न करते हैं. इट कुड बी फॉर कुकिंग, इट कुड बी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इट कुड बी फॉर हीटिंग, इट कुड बी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. एंड ड्यू टू कंबशन, release of large amounts of carbon dioxide takes place. Okay, बहुत सारी carbon dioxide is released back into the atmosphere. And that's how we just conclude the topic, that how is carbon released back to the atmosphere. Okay, so this is a basic illustration of carbon cycle in the atmosphere. Let's start with the very first topic, that is CO2 in atmosphere. Okay, कि atmosphere में carbon dioxide present है. इससे होगा क्या? जो भी atmosphere में carbon dioxide present है, that would be taken up by plants, right, in order to perform photosynthesis. और वो क्या करेंगे? वो अपना फूड बना लेंगे. So that is how it's being illustrated, that it would be now present in the form of organic compounds in plants, right? वो अपना खाना बना लेंगे and it would get fixed. Now just consider a situation कि plants की death हो जाती है. अगर plants की death हो जाती है, so over the time they would form fossil fuels, right? Fossil fuels हमारे क्या है? Coal है. तो प्लांट्स की अगर डेथ हो जाती है, दे वुड फॉर्म कोल और दे वुड फॉर्म पेट्रोलियम, राइट? तो ये हमारे दो साइकिल्स, दो स्टेप्स आई बिलीव आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट? नाउ देयर कुड बी अनदर सिनेरियो कि ये जो प्लांट्स हैं जिन्होंने खाना बनाया है, दे आर ईटन अप बाय एनिमल्स. इफ दे आर ईटन अप बाय एनिमल्स, सो द सेम बेसिक कार्बन that was once a part of plant's body now becomes the part of animal's body, है ना? क्योंकि अब वो जो कंपाउंड्स थे वो कहाँ चले गए? एनिमल्स की बॉडी में चले गए. अगर एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो फिर से क्या होगा?
फिर से फॉसिल फ्यूल्स बन जाएंगे, राइट। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स, राइट। या फिर वो जो एनिमल्स होते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं, दे यूज अप दैट दोज कार्बन। अगर उनकी डेथ भी हो जाती है या अगर वो जो कार्बन हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, तो फिर वो उन कार्बन को यूज करके अपने शेल्स बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो आप हम लोग अपने घरों में शंख यूज करते हैं, राइट। सो दैट इज मेड अप ऑफ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल स्केलेटन। वो हमारा जो एक फाइलम है मोलस्क का, उसके ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्केलेटन है। जब ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है, व्हेन दैट ऑर्गेनिज्म इज अलाइव, वो उस शंख में रहता है, एंड देन जब उसकी डेथ हो जाती है तो स्केलेटन खाली हो जाता है, वो केस खाली हो जाता है, राइट। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ शेल, ओके। और वो शेल है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट कैन इजीली डिजॉल्व इन वाटर, तो वो वाटर में कार्बोनेट्स बना लेती है। देन इट मिक्सेस अप विद वेरियस मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स के साथ मिक्सअप होके लाइमस्टोन बना देती है। लाइमस्टोन एक टाइप का रॉक है जिसमें अलग अलग मिनरल्स और कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट। फिर क्या होगा? एनिमल्स की अगर एनिमल्स जब रेस्पायर करेंगे या उनकी डिकम्पोजिशन होगी, तो CO2 would again be released back into the atmosphere, ठीक है। CO2 वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज बैक हो जाएगी, राइट। So that's how the carbon cycle operates in the nature, right? After that, now let's just discuss another major biochemical cycle, that is the oxygen cycle. Now the definition obviously is very obvious and it becomes very evident. Now if we try to define oxygen cycle, it could be defined as the circulation of oxygen through various components of the biosphere, है ना? कि बायोस्फीयर में अलग, बायोस्फीयर के अलग अलग कंपोनेंट्स में, बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स है क्या? पार्टिकल ए पार्टिकल, राइट। तो बायोस्फीयर के अलग अलग कंपोनेंट्स से ऑक्सीजन की मूवमेंट कैसे होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल, राइट। So let's start with the very first basic process, that is written over here कि oxygen is present in air and also dissolved in water, right? क्योंकि एयर में भी प्रेजेंट है, हम वाटर यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर में भी रहते हैं, है ना। So we are starting with this that oxygen is present in air and in water. तो जब एयर और वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिजम्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, ऑर्गेनिजम्स उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन, है ना। तो रेस्पायरेशन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज कर लेंगे। जब रेस्पायरेशन होती है, I believe at this point you are very clear for the difference between breathing and respiration, right? Breathing क्या होता है? When you are just simply exchanging the gases, right? You are taking in O2 and releasing CO2. That is called as breathing. But respiration, as we have studied in basic classes, that when you are using that oxygen in order to produce energy, right? जब आप यूज करते हो उस ऑक्सीजन को, सो दैट यू कैन इजिली ब्रेक डाउन द फूड दैट यू हैव टेकन अप एंड देन you can produce some energy. That process is called as respiration, right? respiration से होता क्या है? CO2 evolve होती है, right? So we are basically performing respiration. उससे क्या होगा? CO2 evolve होगी, CO2 evolve होगी, then that CO2 will taken up by plants, right? वो CO2 कौन ले लेगा? Plants ले लेंगे. Plants would be performing photosynthesis. Photosynthesis करेंगे तो oxygen would again be released back into the atmosphere, है ना। जो ऑक्सीजन होगी उसको एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज बैक कर दिया जाएगा, ओके। आफ्टर दैट देयर इज अनदर थिंग कि अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं बना रहे ना, क्योंकि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं दे आल्सो प्रिपेयर फूड, राइट। वो साथ ही साथ खाना भी बनाते हैं। खाना किसकी फॉर्म में बनता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज C6H12O6 इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, राइट। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो फोटोसिंथेसिस से एक तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, साथ ही साथ कुछ खाना बन रहा है,
तो देन दैट फूड अगेन एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो खाना हम लोग खा लेते हैं, दैट एंड देन दैट फूड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। तो फिर वो जो खाना होता है वो किस प्रोसेस में चला जाता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। फिर वो खाना डाइजेस्ट होगा, अगेन CO2 एंड वाटर वुड बी रिलीज एंड द सेम साइकिल्स एंड द सेम प्रोसेस वुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सारी की सारी प्रोसेस दोबारा दोबारा रिपीट होती रहेगी, एंड दैट्स हाउ ऑक्सीजन साइकिल ऑपरेट्स इन द nature. Okay, that's all for today's class. We are just set with nitrogen cycle and two more topics, that is greenhouse effect and ozone layer, and that we would continue in the next class.